Good morning, all students, in this morning session of English literature. Today, here is a very beautiful poem. The name of the poem is Ecology. It is composed by A.K. Ramanujan, who was born in Mysore in 1929. He is a bilingual. He writes both in Kannada as well as in English language too. However, this poem Ecology is incorporated from Ramanujan's third volume of poems, Second Sight, published in 1986. The speaker seems to be the poet himself or some imaginary person who is loyally devoted to his mother. In this beautiful poem, love of mother in perspective of children has been reflected, and it is the hallmark of Indian civilization and culture, which is supposed to be Oriental philosophy. Let me discuss in detail. The poem Ecology by Ramanujan depicts eco-critical perspective. Here the poet presents a conflict between anthropocentric views and biocentric views. The narrator upholds anthropocentric views while the mother holds biocentric views. Anthropocentric views मानव केंद्रित और बायोसेंट्रिक जैविक केंद्रित. However, here the narrator plans to cut the champak tree which gives migraine to his mother. Though the champak tree creates problem for her mother, she does not allow him to cut the tree. This shows the biocentric view of the mother. For her, the migraine is nothing in compared to the amount of flowers that is obtained every season from that tree. Many poets have glorified nature through their poems, but what makes this poem differ from other poems is that here poet makes clear criticism on champak tree and helps the readers to understand and reach a conclusion. Here Ramanujan examines the negative and positive sides of the champak tree and makes an awareness in the minds of the readers about the importance of conservation of the tree. However, we have to discuss a detailed study of the poem in a very simple and ordinary explanation. Very ordinary and very simple explanation. Listen to me very carefully, students. In the poem, the poet appears to be the poet himself in the form of a speaker or some imaginary person who is loyally devoted to his mother. He is very angry. The poet is very angry. कवि बहुत नाराज है because his mother has a severe attack of migraine. A very severe bad kind of headache. बहुत बुरे प्रकार का जो सिर दर्द होता है, that is called migraine. Often causing a person to vomit. उल्टी आनी शुरू हो जाती है, which is caused by the fragrance of the pollen of the flower of red champak tree. And it is red champak tree. Okay? The fragrance is heavy and suffocating as the yellow pollen spreads everywhere. Even the doors of the speaker's house cannot prevent the strong smell from entering the house. The walls of the house are able to absorb almost everything, the sounds, sights, and human voices, the harsh sounds produced when new shoes are worn. It means a very sensitive walls of the house. But they cannot stop the fog of pollen dust from the champak tree.
On the other end, the love of the child for her mother compels him, he means to the poet, to cut down the tree. But he is prevented, the child, the poet is prevented from doing so by his mother. She does not allow him to cut down the tree. She says that the tree is as old as her and had been fertilized by the droppings of a passing bird by chance, which is considered to be a very good omen. एक पक्षी वहाँ से उड़ के जा रहा था, उसकी चोंच में जो बीज था वो वहाँ गिर गया और वो गिरने से वो वृक्ष उगा। ये बड़ा शगुन माना जाता है, उनके द्वारा शुभ शगुन माना जाता है। द पॉजिटिव साइड ऑफ इट इज़ दैट द ट्री प्रोवाइड्स मैनी बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स to be offered to her gods and to her daughters and daughters' daughters every year. Although the tree would give a terrible migraine to one line of cousin as a legacy. The yellow pollen fog is the yellow dust of pollen carried in the air, which is thick and heavy like fog which covers the earth. Okay, dear students, now let me read the text of the poem. The day after the first rain monsoon, for years I would home in a range interesting. What are you so mad about, speaker? For I could see from a mile away on the way home our three red champak trees. यहाँ कितने? 3 red champak trees. Our 3 red champak trees had done it again. Had done it again का मतलब फिर उन्होंने सिर दर्द शुरू कर दिया है, meaning they have done it before. Had burst into the flower and given mother her first blinding migraine, first but not last, blinding because of the extent of the pains she is in of the season. These migraines last the whole season. प्रिय विद्यार्थियों, ये एक जब सीज़न के अनुसार इस चंपक ट्री पे फूल कोंपल विकसित होना शुरू होती हैं तो उनकी खुशबू महक से कवि की माँ को माइग्रेन, बहुत बुरे तरीके का सिरदर्द शुरू हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। The poet says that every year on the day after the first rain of monsoon, from the very beginning of the rainy season, it means he returns home in anger. While returning home, घर लौटते हुए, from a mile away, 2 बार रिपीट किए ये mile away, the poet could see the 3 red champak trees grown in his house. घर में 3 चंपक ट्रीज उगते हुए दिखाई देते हैं, दूर से, मीलों दूर से, 1 मील दूर से। एंड दीज चंपक ट्रीज वर द रीज़न ऑफ हिज एंगर, ये चंपक के ट्री उसके गुस्से के कारण है। ड्यूरिंग मानसून सीजन दीज ट्री क्रिएटेड प्रॉब्लम व्हेन दे वर फुल ऑफ फ्लावर, जब फूल लद जाते हैं इस पे, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर द फर्स्ट रेन, और इससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है माइग्रेन की। बहुत ही अनोखे तरीके से प्रस्तुत किया है। इट हैड डन इट अगेन, क्या बात लिखी है। बहुत सिंपल सरल शब्दों में बहुत गहरी बातें लिखी हैं। द फैक्ट इज समवॉट पेकुलियर दैट ए ट्री विच इज़ ए पार्ट ऑफ नेचर कुड मेक समवन एंग्री इंस्टेड ऑफ गिविंग प्लेजर एंड हैप्पीनेस। दिस इज द कंट्रास्ट ऑफ लाइफ इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर बाय द पोइट। However, the poet says that during the monsoon season, the champak trees of his house garden were full of red and fragrant flowers. फूलों की महक सब तरफ पहुँचती है। एंड आफ्टर द फर्स्ट रेन, प्रथम बारिश के बाद ही, उसके शुरू में ही, द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर्स स्प्रेडेड इनटू द होल एनवायरनमेंट, सारे वातावरण में खुशबू फैल जाती है। एंड गेव द सीवियर हेडक ऑफ माइग्रेन, और सीवियर हेडक माइग्रेन हो जाता है उसकी मदर को। द पोइट्स मदर वाज एलर्जिक टू द स्मेल ऑफ चंपक फ्लावर्स एंड शी कुड नॉट बियर। जो माँ थी वो
चंपक ट्री से एलर्जिक थी और वो सहन नहीं कर सकती थी माइग्रेन्स लास्ट द होल सीज़न। और ये जो माइग्रेन है ना, ये पोइटिक लाइन क्या लिख रहा है, माइग्रेन्स लास्ट द होल सीज़न। लास्ट का मतलब लंबे समय तक चलता है, पूरे सीज़न ये दर्द चलता है उसकी माँ के सिर में। विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग येलो पोलन फॉग ऑफ फ्रेगरेंस। और फिर उसके पीले पीले पोलन पुंकेसर जो हैं उनकी लंबे और उनकी खुशबू दूर दूर के लंबे लंबे एरिए तक, दूर दूर के एरिए तक फैलती है और वो उसकी माँ के सिर दर्द का कारण बन जाती है और पूरे सीज़न चलती है, 1-2 दिन भी नहीं चलती। कितनी विचित्र बात है कि ये उस माँ के लिए दुखदाई बन जाता है, लेकिन माँ इस वृक्ष को काटने नहीं देती है। नो डोर कुड शट आउट। ओके, बिफोर दिस, with their street long heavy hung yellow pollen fog of fragrance, the pollen grains have made the air thick like fog. In fact, the air is yellow with its heady scent. No wind could swift the breeze cannot blow away this fog. इतनी हैवी है इसकी खुशबू, सब तरफ फैल जाती है कि तेज़ से तेज़ हवा भी इसको दूर नहीं कर सकती। The poet tells in very simple words that no door of the room or house could prevent the smell of champak flowers from entering in. The poet describes the walls of his house. He says that the walls of his black pillared house were sensitive, that could not keep away the smell of champak flowers. Let me read once again. With their street long heavy hung, heavily बहुत भारी भारी तरीके से hung लटके हुए स्ट्रीट, पूरी लंबी लंबी सड़क पर दूर तक, येलो पॉलन फॉग ऑफ फ्रेगरेंस, येलो पीले रंग के जो पुंकेसर थे उनकी फ्रेगरेंस खुशबू, द पोलन ग्रेन्स हैव मेड द एयर थिक लाइक फॉग, और उसके अंदर सारा उसकी खुशबू महक उसकी सब तरफ फैल जाती है, बिल्कुल हर तरफ उसका शोर मच जाता है। इस प्रकार से गार्डन के अंदर ये शोर, कोई आ गया बीच में डिस्टर्ब कर दिया उसने, सॉरी स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वंस अगेन। खुशबू उसकी जो फैल रही है सारी दूर दूर तक, उसने सारे वातावरण को यहाँ पे डिस्टर्ब करके रख दिया है। नो डोर कुड शट आउट एंड द डोर्स कैन नॉट कीप इट आउट आइदर। द होल स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दैम इज थिक विद इट विल सीप in through the gaps from. What a beautiful language has been utilized by the poet. Pillared house whose walls had ears and eyes. पर्सोनिफिकेशन, दीवार के भी कान और आंखें लग रही हैं, इतना घर वो सेंसिटिव है। बीइंग personified, the house scales, smells, bone cracks nightly, visiting voices, and where porous pollen will get in through the holes like a self-explanatory, we will breathe in this fog pollen. Listen to me. Okay dear students, जो ये सज्जन आए थे, कोई बात नहीं, इनसे डिस्टर्ब हुआ, दोबारा शुरू कर रहा हूँ। बता रहा है कि वहाँ पर दरवाजे के अंदर, घर के दरवाजे में कोई भी ऐसा, प्रत्येक रूम में कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है कि जो इसकी खुशबू को प्रिवेंट कर सके, रोक सके। In very simple and ordinary words, no door of the room or house could prevent the smell of champak flowers from entering in. The poet describes the walls of his house. He says that the walls of his black pillared house were sensitive, that could not keep away the smell of champak flowers. They allowed everything to seep through or enter. He personifies his house and says that its walls have ears and eyes. The house can scale, smell, hear sounds of movements of bones, shoes wearing even sound, very trivial sound of shoes wearing sound, ये भी वो दीवारें
महसूस करवाती है, बहुत सेंसिटिव बताया है। हियर नाइटली विजिटिंग गॉस्टली साउंड्स ऑन, आने वाले किसी प्रेत आत्मा तक की आवाज़ को पकड़ लेते हैं, करते हैं, बहुत सेंसिटिव है। लेकिन इस वृक्ष की जो खुशबू है उसको ये दीवारें नहीं रोक पा रही हैं। द वॉल्स वर पोर्स लाइक ह्यूमन बॉडी, और जो दीवारें हैं वो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर छिद्र होते हैं ना, उस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है। बीइंग इस लाइन में बीइंग पर्सोनिफाइंग द हाउस, स्केल्स, स्मेल्स, बोन्स, ये पढ़ दी मैंने बेटा, पहले ध्यान रखना। क्रेक्स, bones, creaks, nightly visiting voices, and were porous pollen will get in through the hole like us. Self-explanatory, we will breathe in this fog pollen. इतना सब कुछ सेंसिटिव होने पर भी ये मकान के अंदर हमें रहने वालों को इस वृक्ष की वो खुशबू आखिर सहन करनी पड़ती है। मकान की दीवारें इसको रोक नहीं सकती, और ये जो खुशबू अंदर आती है इस वृक्ष की, यही कवि की माँ के माइग्रेन का, सिर दर्द का कारण बन जाती है। कवि यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दे रहा है कि बट मदर flashing her temper like her mother's twisted silver, giving the mother singer some physical quality, shiny, radiant, expressive in her temper, grandchildren's knickers, soaked, then wrung, twisted, wet as the cold pack on her head, wet because she was sweating, cold sweets would not let us cut down ए फ्लावरिंग ट्री। कवि माँ की दर्द, पीड़ा, वेदना से परेशान होकर वृक्ष को काटना चाह रहा है, पर शी वुड नॉट लेट अस कट डाउन ए फ्लावरिंग ट्री। ये पोइटिक लाइन है, वुड नॉट लेट अस कट डाउन ए फ्लावरिंग ट्री। फ्लावरिंग ट्री, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बैड ओमेन। ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस उसको वो महत्व दे रही है, लेकिन ये बैड ओमेन बना हुआ है और उसी को वो गुड ओमेन मान के चल रही है कि ऑलमोस्ट एज ऑल्डर एज हर सीडेड शी said by a passing bird's providential droppings taken as a blessing came from the sky। एक पक्षी बताया था मैंने शुरू में जब इसको समराइज़ कर रहा था, एक पक्षी उड़ के जा रहा था, उसकी चोंच के अंदर से एक सीड यहाँ गिर गया और वो उसके बीज ड्रॉप होने से ये वटवृक्ष उग गया, और आज उसको ये उस समय का गुड ओमेन, शगुन, शुभ शगुन मानते हैं। लेकिन उसी शुभ शगुन की खुशबू से माँ के सिर में वेदना उत्पन्न हो रही है, पर माँ फिर भी इस वृक्ष को काटने नहीं दे रही है। पुत्र इतना बढ़िया है कि माँ की पीड़ा में खुद की पीड़ा महसूस समझते हुए वृक्ष काटना चाहता है, लेकिन वो काटने नहीं दे रही। पोइटिक लाइन है ना, वुड नॉट लेट अस कट डाउन ए फ्लावरिंग ट्री। वो कह रही है कि पुष्प देने वाला वृक्ष है, कितने मेरी बेटी की बेटी की बेटी के कितने सारे फूल वृक्ष इस वृक्ष ने उत्पन्न किए हैं। ये धार्मिक कृत्यों में देवी देवताओं की पूजा स्तुति के लिए फूल प्रयोग किए जाते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न कि मैं अकेली इम्पॉर्टेंट हूँ, इसलिए वो इस काटने नहीं दे रही। दूसरा, वो ये भी एनवायरनमेंट की बहुत ही लव ऑफ नेचर है, इस कारण से वो सब काटने नहीं दे रही। दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ व्हाट दिस ट्री इज़ गुड फॉर अस। To give her gods and her daughters and daughters and daughters basketful of annual flower. This is the extent of what this tree is good for. And for one line of cousin adore of migraines in season burn, perhaps pollen allergy is inherited. ये मानो कि उसको इनहेरिटेंस में, विरासत में, वसीयत में ये सिरदर्द बेचारी को मिल गया हो, लेकिन वो चुपके फिर भी इसको सहन करती जा रही है। कितना एक पुराने लोगों का प्रकृति के प्रति मान सम्मान था, इस बात को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। माँ एलर्जिक है, फिर भी वो प्रकृति से इतना प्यार कर रही है। The poet describes in a very ordinary words that the mother was allergic
to smell of champak flower, she suffered the severe headache of migraine because the smell originated from the flowers. She displayed her anger like her mother's twisted silver. Here the poet gives his mother's anger some physical quality. Her anger is shiny, radiant like silver, and she is expressive in her temper. When she felt pain or headache, जब उसको दर्द और ये महसूस हुआ, there was sweat on her head, cold sweat, पसीना आ जाता है, sweat just as the garments of grandchildren were wet and twisted. कितनी एक अनोखी प्रकार की विचित्र प्रोडिजियस लैंग्वेज के अंदर लिखा है कि सिंपल शब्दों को प्रयोग करके भी एक कॉन्ट्रास्ट सा क्रिएट किया है कि उसको अच्छा कहें या बुरा कहें. वर वेट एंड ट्विस्टेड, वो ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे वो गीले रहते थे और रहते थे, लेकिन यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है ये लीगल क्यूबल शब्द है, द्विअर्थी से भी ज़्यादा कई अर्थ बताता है. शी, और कुल मिला के अर्थ ये है कि उस खुशबू से दर्द होता है लेकिन फिर भी उसको काटने नहीं देती है वो माँ अपने बेटे को, जो कि बेटा उसका कवि है इस कविता का. शी आल्सो फेल्ट ट्विस्टेड लाइक निकर्स बट शी नेवर अलाउड द पोएट टू कट डाउन द ट्री. फिर भी वो उसको काटने नहीं देती है. हाउएवर, very important is that in olden civilization the people were lover of trees, environment. That viewpoint is prolonged and being projected out in this poem. In the simple words, as since her childhood she had seen the tree and so she felt a kind of attachment to the tree. She further tells that the champak tree grew in their garden by a seed which was being carried away by a bird, and it fell by chance from his mouth in their house. This kind of event is regarded auspicious. The tree was a blessing from the sky, from God to them, and it was a bad omen to cut. काटना इसको बैड ओमेन है, इसको रखना गुड ओमेन है, क्योंकि ये एक वो पक्षी जो बीज ले जा रहा था उड़ता हुआ, उसके गिरने से, ड्रॉप होने से ये हुआ है, इसलिए इसको शुभ माना जा रहा है. इट प्रोवाइडेड इन एवरी सीजन बास्केट ऑफ फ्लावर्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट 10 minutes back, I have explained all these things. Now to delineate, to get you understood well, we are going to refocus. This kind of event is regarded as auspicious, बहुत शुभ है, क्योंकि ये उसके पक्षी के जो चोंच से बीज गिरने से उत्पन्न हुआ. The tree was a blessing from the sky, from God to them. It was a bad omen to cut. It provided in every season basket of flowers to their daughters, and their daughters also to adore and decorate God's idols. मूर्ति पूजा के लिए फूल प्रस्तुत होते हैं. हर साल मानव जाति के लिए इतने सारे फूल प्रस्तुत करता है, तो ये पूरे समाज को जो लाभ दे रहा है, और यदि एक मनुष्य को इससे परेशानी है तो वो परेशानी सहन करेगी, इसलिए वो इसको काटने नहीं देगी. वॉट लार्ज हार्टेड मदर इज, वी कैनॉट एक्सप्रेस इन आवर वर्ड्स. इट प्रोवाइडेड इन एवरी सीजन बास्केट ऑफ फ्लावर्स to daughter's daughter, God's idol. Oh, but she does not allow to cut down the tree. Immense heart, immense, colossal, matchless personality of mother is being represented here. It was the most remarkable benefit of the champak tree according to mother, and therefore she would not let the tree cut down. However, a full of generation of cousin was suffered with migraine. The migraine, सिर दर्द, was a gift from them, from nature. वो तो ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रकृति की गिफ्ट है. The flood of migraines that the girls got was like a dowry in that season. मानो कि उनको वसीयत और विरासत में मिला हो. Dear students, listen to me once again very carefully. At third time, I am going to read this text of this poem in this single lecture.
सो लिसन, मैं बीच बीच में हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। नॉर्थ इंडिया के रायसी नगर के बच्चे, हमारे अनूपगढ़ के रायसी नगर के गसिंगपुर, पदमपुर, गंगानगर, कर्णपुर, सादुल शहर, सभी नॉर्थ इंडिया के बच्चे ध्यान से फिर सुन लेना। द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, जब पहली बारिश आती है ना, तो बारिश आते के बाद ही तुरंत पहले दिन क्या होता है मानसून के, ये कई सालों से ऐसा हो रहा है कि उसकी जो खुशबू है वृक्ष की वो फैलना शुरू हो जाती है। और जब ये फैलती है, 4 I could see from mile, और एक एक मील दूर से महक फैल जाती है और वो दिखना शुरू कर देते हैं। 3 चंपक ट्री उनके वहाँ लगे हुए हैं। और कवि का फिर दिमाग ठनक जाता है, फिर गुस्से में आता है और दूर से ही वो कहता है हैड डन इट अगेन। इसका मतलब दोबारा फिर हो गया। दोबारा फिर होने का मतलब माँ के फिर सिर दर्द हो गया, मीनिंग दे हैव डन इट बिफोर, जैसा कि ये पहले भी कर चुका हो। हैड बस्ट इनटू फ्लावर एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन, और ये बिल्कुल अंधा कर देने वाला, बहुत कष्टकारी, वेदना, पीड़ा वाला सिर दर्द है। फर्स्ट बट नॉट लास्ट, ब्लाइंडिंग ब्लाइंडिंग ब्लाइंडिंग। ओके, कोई आ गया है, कोई बात नहीं, आप बैठो 2 मिनट, आवाज़ मत करना, बस आप बैठो एक पैर। यस, had burst into flower and given mother her first binding migraine, first but not last. It was not the last, dear students, binding because of the extent of the pain she is in the season. These migraines last the whole season, और ये दर्द था जो माँ के सिर में, ये पूरे सीज़न चलता है, कोई एक दिन नहीं चलता। जितने लंबे समय तक ये बरसाती मौसम चलेगा, उसके वृक्ष की खुशबू से उसकी माँ के माइग्रेन, कठोर वेदना सिर में होगी, सिर दर्द रहेगा। विथ देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग येलो पॉलन, ए वेरी ब्यूटिफुल वर्ड पेंटर इज लुकिंग हियर। ऐसा लग रहा है कि मानो शब्दों की तस्वीर जॉन कीट्स की तरह से हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। जॉन कीट्स है ना, उनको माना जाता है कि शब्दों के पेंटर हैं, और यहाँ हमारे कवि महोदय भी शब्दों के पेंटर हैं। बच्चों ध्यान से सुनो। विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग येलो पोलन, और उस वृक्ष के ऊपर भारी भारी पीले रंग के पोलन, उसके पुंकेसर, फॉग ऑफ फ्रेग्रेंस, वो लदे हुए हैं और उनकी खुशबू सब जगह फैल रही है। देन पोलन ग्रेन्स हैव मेड द एयर थिक लाइक फॉग, जैसे धुंध होती है ना, तो इतनी भारी भारी खुशबू फैल रही है। इनफैक्ट द एयर इज़ येलो विद इट्स हेडी सेंट। हेडी सेंट इसलिए कहा है क्योंकि माँ के सिर के ऊपर वो अटैक करता है, उसकी खुशबू, उसके सिर दर्द, माइग्रेन, वेदना हो जाती है। नो विंड कुड स्विफ्ट, और जिस प्रकार से वायु खुशबू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के सामान्यतः ले जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वायु इस वृक्ष की खुशबू को इस स्थान से, उनके घर से दूर नहीं कर सकती। द ब्रीज कैनॉट ब्लो अवे दिस फॉग, नो डोर कुड शट आउट, और जो घर के दरवाजे हैं वो भी इस खुशबू को रोक नहीं सकते। शट आउट का मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। एंड द डोर्स कैनॉट कीप इट आउट आइदर, और घर की दीवारें और घर के जो दरवाजे हैं, विशेष दरवाजे, वो इस खुशबू को इससे बाहर नहीं रख रहे हैं। द होल स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दैम, पूरी सड़क उनके सामने है, इज थिक विद इट विल सीप इन थ्रू द गैप्स फ्रॉम अवर ब्लैक पिल्लर्ड हाउस। काले जो पिल्लर थे, घर की दीवारें थी बड़ी बड़ी, होज वॉल्स हैड ईयर्स, और कहा जाता है उनके घर की दीवारों के कान लगे हुए थे, आंखें लगी हुई थी। बिगिन्स पर्सोनिफाइंग द हाउस, और लगता है मानो कभी उस घर का पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, अलंकार कर रहा हो, कि जिस प्रकार से एक पुरुष के आंखें और कान लगे हुए हैं, उनके घर की दीवार उनकी इतनी सुरक्षा करती थी, इनकी इतनी रक्षा करती थी कि मानो हर संकट से वो दीवारें अपनी आंखें लगा के देख लेती थी, कान लगा के सुन लेते थे, और उनको किसी भी प्रकार की कोई वेदना, प्रॉब्लम नहीं होने देते थे। इस प्रकार वो घर बना हुआ है, लेकिन इस घर को भी इस वृक्ष की खुशबू से असुरक्षित समझा जा रहा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी विल ब्रीथ इन दिस फॉग पॉलन, और इसमें हम अब खुशबू के अंदर हमें आखिर सांस लेनी ही पड़ेगी। और जैसे परिवार के लोग सांस लेंगे, जो घर में वृक्ष लगे हुए हैं, चंपक लाल वृक्ष के ट्री, इनकी खुशबू बरसाती मौसम में जैसे ही फैलना शुरू करती है, माँ के सिर दर्द शुरू हो जाता है, कवि के सिर दर्द, और उसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर
ट्विस्टेड सिल्वर गिविंग द मदर्स एंगर सम फिजिकल क्वालिटी, अपने फिजिकल एंगर उसने शो कर दिया। एंगर को भी एक तरह से हाफ पर्सोनिफाइड करके बताने की कोशिश की जा रही है। शाइनी रेडियंट एक्सप्रेसिव इन हर टेम्पर, चेहरा गुस्से में लाल तमतमा हो जाता है माँ का। जब माँ का बेटा कहता है कि माँ तेरा सिर दर्द रोक दूर करने के लिए मैं वृक्ष को काट दूँ, तो माँ उस वृक्ष को काटने नहीं देती। ग्रैंड चिल्ड्रन निकर्स सॉक्ड, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको सांस के अंदर उसकी खुशबू बचपन से ही लेते आ रहे हैं। देन रंग ट्विस्टेड वेट एज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड, मानो कि ये तो उनको सब कुछ कोल्ड पैक मिला हो। वेट बिकॉज शी वाज स्वेटिंग कोल्ड स्वीट्स, उसको सिर पर पसीना आ जाता है जब उसके सिर दर्द होता है। वुड नॉट लेट अस कट डाउन ए फ्लावरिंग ट्री, लेकिन फिर भी जब कवि कहता है कि मैं इस वृक्ष को काट दूंगा माँ क्योंकि इसकी खुशबू से तेरे सिर दर्द होता है, पर माँ उस पेड़ को काटने नहीं देती, इस फ्लावरिंग ट्री को। फ्लावरिंग ट्री ये फूलों वाला वृक्ष है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका एक धार्मिक महत्व भी बताया है। बैड ओमेन, बुरी बात है। ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर सीडेड शी सेड बाई पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स टेकन एंड ब्लेसिंग केम फ्रॉम द स्काई। एक बार की बात है, एक बार एक पक्षी अपनी चोंच के अंदर भी कोई दाना, कोई बीज लेके घर के ऊपर से हवा में उड़ रहा था, और वो दाना उसके चोंच से नीचे गिर गया, और गिरने से क्या हुआ, वो बीज वृक्ष बन, पौधा बना और वृक्ष बन गया। आज वही वट वृक्ष है। ऐसा ये शगुन माना जा रहा है कि ये स्वर्ग का आशीर्वाद है। इस स्वर्ग के आशीर्वाद को मान करके ये माँ वृक्ष को काटने नहीं दे रही है। इट इज़ वन साइड ऑफ थिंकिंग, बट सेकेंड साइड ऑफ थिंकिंग इज दैट शी इज़ अटमोस्ट लवर, शी इज़ द डीपेस्ट लवर ऑफ tree, nature and environment. This is the critical approach you have to think in your permanent memory. Okay dear students, and for one line of cousins, a dower of migraines in season burn, कैसा जलने लगता है, जलन सी होनी। परहैप्स द पोलन एलर्जीज एनरेटेड, मानो कि वो पुंकेशस जो पोलन है उससे जो एलर्जी है, वेदना जो उसके संपर्क में आने से होती है, वो उसको इनहेरिटेड विरासत वसीयत में मिली हो। सो इन ए ब्यूटिफुल मैनर द पोइट इज़ वेरी कॉन्शियस of all aspects of Indian culture. So the very beautiful text of the poem in simple and ordinary words is being represented by world class poet A.K. Ramanujan. Understanding dear students, इन्होंने बहुत लाइफ में वर्क किया था एंड मैसूर में रहे, फिर ये विदेशों में रहे, और इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में, और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में, और इन्होंने इंग्लिश में बहुत काम किया। शिकागो यूनिवर्सिटी USA के अंदर भी इन्होंने लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, द्रविडियन लैंग्वेज पर बहुत काम किया। इस प्रकार से ये ग्रेट कवि हैं इंडिया के, और इनकी पोइम इकोलॉजी वातावरण के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है। लव ऑफ नेचर, love of environment is being projected out here in this the text of the poem. Okay dear students, जय हिंद, जय भारत। बना लो फिर किराया बंद, फिर उन्होंने ऑफिस लगा लिया अपना। ये कहानी है। हमें तो क्या बच्चों को गला फाड़ फाड़ के भोंक के पढ़ाना पड़ता है भाई। अब गर्मी में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, दिखा है क्या? कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करें हम तो बंदे। किराया देते हो क्या अभी? अब नहीं यार, अब तो किस लिए देना है? फैमिली के लिए। कौन है? मम्मी, आप ही। तो क्या करते हो, करते क्या हो आप? मैं तो ये थोड़ी मिला ये काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक का नाम। अच्छा, यूँ है यार, अब मन कम ही है देने का। चलो आप पूछिए। अब मन कम है, इसको दे। यस, कम इन। हाँ प्रकाश, और कैसे हो? यस, आ जाओ, चल लेना। हाँ ठीक है, बैठो 1 मिनट। इसका आ जा बेटा, आ जा। इन ये टॉवल दे मेरे को। प्रकाश, ये चेयर बाहर ही कर लिया, नहीं तो यार। और ये कारण है कि मैं
बाहर क्यों बैठा हूँ, ये साउंड पंखे की आवाज़ को भी पकड़ता है, माइक बहुत सेंसिटिव हाँ सही है ना। तो ये जो पंखे की आवाज़ को पकड़ता है ना, तो फिर बच्चों को क्या है, आवाज़ पूरी साफ सुनती नहीं, हाँ उसकी वो आती रहती है आती है आवाज़। तो इसलिए मैं अब ये बीच में आया था, मैंने कहा आवाज़ में चुप करके बैठ जा तू यहाँ। कहता सर घड़ी दिखावे 10 मिनट हो गए। मैं कहा जा फिर। कहता सर बैठ जाऊँगा मैं, और तो क्या है। और फिर मैं यार मैं मेरा